ٹی بی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مائرین فورٹ اور مائرین پی فورٹ میڈیسن مارکیٹ سے عرصہ دراز سے نایاب، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، علاج و معالجہ بالکل رک چکا ہے۔ میڈیکل سٹور مالکان اور مریضوں کا کہنا ہے کہ جان بچانے والے ادویات مہنگی تو ہو جائیں مگر مارکیٹ میں دستیاب ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مریض اپنا علاج جاری رکھ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں مارکیٹ کے اندر میڈیکل سٹور پر موجود ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ سجاد، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ بالکل جی، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے۔ کسی بھی بیماری سے متعلقہ لائف سیونگ ڈرگ جو ہے وہ شارٹ ہونا جو ہے وہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے، کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر مائرین پی اور مائرین پی فورٹ جو میڈیسن ہے، جو کہ ٹی بی کی میڈیسن ہے، وہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو چکی ہے۔ اور افسوس کی زیادہ بات یہ ہے کہ عرصہ دراز سے یہ میڈیسن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹی بی کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھا کے کبھی اس جگہ، کبھی کسی میڈیکل سٹور پہ اور کبھی کسی میڈیکل سٹور پہ جو ہے وہ میڈیسن ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر چاہے کوئی امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے، لیکن اس سے متعلقہ جو سالٹ ملتا جلتا ہے اس کی کسی قسم کی جو ہے وہ میڈیسن مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی ٹی بی کا کوئی بھی سالٹ، ٹی بی بیماری کو دور کرنے کا کوئی بھی سالٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کی زیادہ تر جو پسند ہے، زیادہ تر جو ریٹن پرسکرپشن ہے وہ مائرین پی اور مائرین فورٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لائف سیونگ ڈرگ ہے، اس کے 1 یا 2 دن نہ کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ علاج بالکل بیک چلے جاتا ہے اور جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آئے کسٹمر اور میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی میڈیسن کو شارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی میڈیسن مہنگی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شارٹیج جو ہے وہ عوام پر بہت بڑا ظلم ہے، مریضوں پر بہت بڑا ظلم ہے۔ اب کوئی امیر ہو یا غریب ہو، امیر آدمی اب مجبور ہو چکا ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر اپنا علاج شروع کرائے، کیونکہ پرائیویٹ مارکیٹ کے اندر بالکل جو ہے یہ میڈیسن شارٹ ہے اور ڈاکٹروں کو بھی، پرائیویٹ کلینک والوں کو اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو امیر آدمی ہے وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر کروا رہا ہے، جس کی وجہ سے تاکہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں آنے والی جو ٹی بی کی میڈیسن ہے تاکہ اس کو مل سکے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ٹیٹنس کے انجیکشن پہ جو ہے وہ ایکشن لیا تھا، اور اب جو یہ انجیکشن مارکیٹ کے اندر موجود ہے، لہٰذا اب ٹی بی کی جو میڈیسن ہے، عوام اپیل کر رہی ہے ان سے کہ ٹی بی کی میڈیسن مائرین جو ہے وہ بھی مارکیٹ کے اندر شارٹ ہے، لہٰذا صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر ڈرگ کنٹرول ونگ کو آرڈر کریں، وہ باقاعدہ اس پر ٹینشن لیں گے تو یہ میڈیسن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ سکتی ہے، کیونکہ لائف سیونگ کسی قسم کی ڈرگ جو ہے وہ شارٹ ہونا جو ہے وہ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ متعلقہ کمپنی کو نوٹس کیا جائے اور ڈسٹریبیوٹر سے پوچھا جائے کہ میڈیسن شارٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ بہت شکریہ سجاد حسین۔ لاہور پولیس کی آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی، 9 عمر لڑکیوں سے جبری مشقت کرنے والے اغوا کار گروہ کے 3 ارکان گرفتار، گروہ کی قید سے 29 بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور پولیس کے آرگنائز کرائم سیل کی بردہ فروشوں کے خلاف آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی، 9 عمر لڑکوں کو اغوا کر کے جبری مشقت کروانے والے گروہ کے 3 ارکان گرفتار، اغوا کار گروہ کی قید سے 29 بچوں کو بھی بازیاب کروا لیا گیا۔ اغوا کار 9 عمر لڑکوں کو لاہور اور دیگر شہروں سے روزگار کا جھانسا دے کر آزاد کشمیر لاتے، اغوا کار لڑکوں سے پہاڑوں میں جبری مشقت کرواتے اور بہمانہ تشدد کا بھی نشانہ بناتے تھے۔ بچے جو ہوم لیس بچے ہیں، جو مختلف درباروں میں یا گھروں کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ لاہور کے اندر گھوم رہے ہیں، ان بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ایک انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ کشمیر میں کہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر ان سے فورسڈ لیبر لی جاتی ہے اور سوڈومائز بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کشمیر میں جس جگہ پہ ان بچوں کو رکھا جاتا تھا اور جبری استحصال کیا جاتا تھا، فورسڈ چائلڈ لیبر لی جاتی تھی۔ اغوا کار 9 عمر لڑکوں کو مشقت کا معاوضہ بھی نہ دیتے بلکہ تشدد کے بعد کمروں میں بند کر دیتے۔ کمروں کے باہر سیکیورٹی گارڈز کھڑے رہتے تھے تاکہ یہ بچے بھاگ نہ سکیں۔ بازیاب کروائے گئے بچے اس ناروا سلوک کی کہانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا بیٹا کام پہ جانا، میں نے کہا سر کام پہ کدھر جانا؟ اس نے کہا کالے شاہ کاکو جانا۔ ہم گاڑی میں سو گئے تھے تو
उन्हें हमें आगे जाकर कश्मीर में उतारा था। 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਆਖੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਣੇ ਦਾ ਗਾਲ ਆਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाजियाब होने वाले लड़कों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान हैं, जिनके वर्षा का पता चलाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पीटीआई सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। उन्होंने हमेशा मुल्क की तरक्की के काम के खिलाफ किया। इनका मकसद सिर्फ फितना और फसाद फैलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़ीद कहा कि एक जमात फिर से इस्लामाबाद पर गलगार करने को तैयार है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर मुजाहिरों का ऐलान, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, कोई गलत फहमी में ना रहे, इस बार कोई रियायत नहीं होगी, क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ये नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज़ हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। तो ये बात तो और ये दोबारा जो एहतजाजों की सीरियल है ये दोबारा शुरू की जा रही है, लेकिन पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा ये जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की वजह से ये साबित करके दिखाया कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस सारा फसाद का प्रोग्राम। और कल भी परसों शायद गालबन मुल्तान में कि कहाँ इन्होंने जो है वो जुलूस निकाला था, अल्लाह के फजल से एक लड़की जो फिर भागती हुई पुलिस को देखे जैसे भागी वो आप सब ने देखा है, और 10 अदद लड़के थे वो निकले इस पूरे एहतजाज को जो है वो करने के लिए। और लोग जो है वो पंजाब में तो इंटरेस्टेड नहीं हैं। लाहौर जलसे का हाल भी आप सब लोगों ने देखा था और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। ख़ुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, ख़ुद जो है हमें ख़तरा बढ़ा है और ख़तरा किससे है? अपने आप से। वो मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। और जो है वो कभी तय खाने में खड़े होते हैं, कभी किसी खेत खलियान में खड़े होते हैं, वहाँ से वीडियो बयान जारी होता है, बस पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ, पर हमने हमारे पे न रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तो ये वो इनकलाब है जो वो लाना चाहते हैं। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आएँ, अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज़ इलाही की बहू ज़ारा इलाही के मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तफसीलात जानते हैं अबू बकर तारिक की रिपोर्ट में। परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही की बहू ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडवोकेट फारूक अमीन राना ज़ारा इलाही के प्लेडर मुकर्रर। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़ारा इलाही पर्दा नशीन खातून हैं। अदालत में परवेज़ इलाही के वकला की जानिब से उनकी हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही तबीयत नासाज होने के पेश नहीं हो सकते। डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। अदालत से इस्तदा है कि एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने परवेज़ इलाही की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने परवेज़ इलाही को आइंदा समात पर तलब करते हुए मुकदमे में मजीद समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। महकमे खुराक की गफलत और नाहली सार्फिन पर भारी पड़ने लगी है। सर्दियों की आमद के साथ ही आटे की तलब भी बढ़ चुकी है। मुल्क भर की ओपन मार्केट में आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर खुराक का कहना है कि किसान के नाम पर ज़ख़ीरा अंदोज़ आवाम को दिए गए रिलीफ को छीनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक पंजाब ने ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ। लाहौर में 20 किलो का थैला एक्स मिल रेट 1740 रुपए, परचून रेट 1770 रुपए मुकर्रर। सिंध में 20 किलो का थैला 60 रुपए महंगा। बलोचिस्तान में आटे की कीमत 90 रुपए किलो हो गई। केपी में 20 किलो का थैला 1790 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में गंदम 3000 रुपए मन, रावलपिंडी में 3200 रुपए मन, कराची में 100 किलो गंदम 8000 रुपए, क्वेटा में 7500 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में गंदम की फी मन कीमत 3080 रुपए तक जा पहुंची। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स आसम रजा का कहना है फ्री मार्केट पॉलिसी फायदा मंद है। पंजाब की फ्लोर मिल्स ने 6 माह तक अपने पास मौजूद गंदम की पिसाई की।
कोयटा में गंदम की आमद कम और मयार नाकिस है। सिंध में गंदम दस्तयाबी कम होने से कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब में पाबंदी के बायस केपी की मिल्स परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानब वजीर खुराक पंजाब बलाल यासीन का कहना है मार्केट में गंदम या आटे की किसी सतह पर किल्लत नहीं। तमाम इजला में 10 और 20 किलो आटे के थैले मुकर्रर करदा निरखों पर फरोख्त हो रहे। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 865 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती गोदामों में 22.5 लाख मेट्रिक टन की वाफर मिकदार में गंदम जखीरा है। प्राइवेट मिल्स के पास नॉन ग्राइंड 9,80,000 मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर खुराक का कहना है कि किसान के नाम पर ज़खीरा अंदोज़ अवाम को दिए गए रिलीफ को छीनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही एलपीजी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। ओगरा रेट पर एलपीजी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। ओगरा रेट 251 रुपए 30 पैसे है, मगर शहर में 270 से 290 रुपए फी किलो फरोख्त होने से शहरी परेशान है। फहाद अमीन की रिपोर्ट। सर्दियां शुरू होने से पहले ही एलपीजी माफिया सरगर्म। एलपीजी आम सार्फिन की पहुंच से बाहर होने लगी। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। शहर में ओगरा रेट पर एलपीजी कहीं भी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवामा फी किलो 251 रुपए 40 पैसे रेट मुकर्रर किया, लेकिन शहर भर में 270 से 290 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। महंगी एलपीजी से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। कहते हैं एलपीजी महंगी होने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। ऑटो रिक्शा लोडर गाड़ियों के किराए भी मजबूरन बढ़ाने पड़ते हैं। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के हाथों पिस चुका है। ओगरा अगर रेट मुकर्रर करती है तो इस पर अमल दरामद भी करवाए। ज़िला इंतजामिया और पुलिस बड़े माफिया के बजाय छोटे दुकानदारों की पकड़ धकड़ और जुर्माने करती है। जितने पैसे कमाए आधे से ज्यादा तो गैस पे चल के जाते हैं और बाकी घर का खर्चा भी मुश्किल से बिल जो सर पे चढ़ जाते हैं। फिर पीछे से हल निकाला जाएगा ओगरा की तरफ से। ओगरा का जो रेट होता है वो कहीं पे भी नहीं चलता है। वो ना प्लांट वाले उसी पे रेट पे दे रहे हैं और ना ही दुकानदार उस पे मुहैया करते हैं। जो भी निचला तबका है वही पिसा जा रहा होता है इसी रेट के चक्कर में। दुकानदारों का कहना है कि जो रेट प्लांट से मिलेगा उसी के हिसाब से दुकानदार आगे बेचेगा। अगर कीमतों को कंट्रोल करना है तो प्लांट से करें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।